Assalamu alaikum students. Open the book of SST, Geography section, chapter number 2, Weather and Climate, page number 9. In this chapter, we study about the difference between weather and climate and also identify the main causes of climatic differences. Weather and climate, what is different between them? Weather is a day-to-day condition. For example, yesterday was cloudy day, today is rainy day, tomorrow will be sunny day, partially cloudy day, stormy day. These are the different these are the weather condition of day by day. It changes every day, right? But climate is the weather over a long period of time in a specific area. For example, in the Arctic region have bitterly cold climate. Throughout the year, the climate of the sorry Arctic region is colder. For in summer there is little bit sunny days, but mostly the climate of the Arctic region is coldest. But in deserty areas, the climate hot and dry climate throughout the year. In some days there is little rainfall, but throughout the several of years of in deserty area, hot and dry climates. Now look at the page number 9. Underline also the important points which I marked on the book. Weather is the climatic condition on any one day. In a desert, there may be one day of shower, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region, during its short summer, there might be a few days when the temperature is quite high. Climate is the average of the weather condition over a whole year. The desert inspired of one day of shower as a hot, dry climate. The Arctic regions, despite a few days of sunshine, has a bitterly cold climate. The climate of a country is very important. It decides what crops can be grown there and how the people live. There is no point in trying to grow rice on the dry, cold plains of Central Asia, nor mangoes in the northern Russia. Bananas will not grow in Siberia, nor cotton in the northern Canada. Weather is very important for any country for growing the crops as well. Obviously crops को अगर उनके appropriate weather condition नहीं मिलेगी तो वो grow नहीं करेंगी. Like rice never grow in dry cold plains. Rice always grow in wet warm places. Mangoes always grow in the summers and in warmer climate. So bananas and all other things, cotton as well. So if the weather condition is not suitable, if the climate is not suitable for the crop or any product, it's never be grown. Either you have a best fertilization, either you do anything, but it never grown because the weather condition is very important. Now, what causes different climates? So now we discuss how the climate or weather change in the areas of the earth because of fixed things. Distance to equator, proximity to the sea, ocean currents, rainfall, air pressure, directions of wind. These are the six factors or six causes to change the climate, and it affects a lot. Number one, distance from equator. As you know कि हमारी जो अर्थ है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट. तो उसके दरमियान में जो उसके मिड में हमने जो लाइन ड्रॉ है उसको इक्वेटर कहते हैं. इसको कहते हैं नियर टू सी. आप इक्वेटर से जितने दूर होंगे आपका जो एरिया है वो बहुत कोल्ड होगा एज कंपेयर. लाइक पोलर रीजन्स आर वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर. बिल्कुल एक नॉर्थ पोल पे है और एक साउथ पोल पे है.
So that's why these are the coldest areas. ओके, आप जितने इक्वेटर के करीब होंगे वो एरिया आपका वार्म और वेटर होगा. एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. इक्वेटर के जितने आप करीब होंगे आपका जो एरिया है वो वेट होगा और वार्म भी होगा. आप जितने दूर होंगे तो आपका वो एरिया जो है वो कोल्ड होगा. बट हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल, एक और रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. जब आप सी लेवल से जितना ऊपर जाते जाएंगे, लाइक इक्वेटर के पास भी बहुत सी ऐसी माउंटेन्स हैं, लाइक माउंट किलिमंजारो, कीनिया, साउथ अफ्रीका में ये माउंटेन जो है ये इक्वेटर के पास है, यानी ये सी लेवल के पास है, बट 100 किलोमीटर के फासला है सी लेवल और उसके दरमियान. और ये माउंटेन ऑब्वियसली रेज हो रही है 5200 मीटर्स हाई है. तो ये जितनी हाइट पे जाती जाएगी, जैसे जैसे इस माउंटेन की हाइट पे हम जाते जाएंगे, जो हमारी माउंटेन है वो कोल्ड होती जाएगी. और थ्रू आउट द ईयर इस माउंटेन की जो टॉप है वो स्नो से कवर रहती है. लेकिन जो इसका प्लेन एरिया है, यानी जो सी लेवल से सिर्फ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो उसका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 30 सेंटीग्रेड रहता है. यानी वार्म है ना, 30 सेंटीग्रेड, लाइक वार्म वेदर कंडीशन. सो उसका जो प्लेन एरिया है वो वार्म है, लेकिन जब वो क्योंकि इक्वेटर पे है ये माउंटेन, तो ये जैसे जैसे हम इस माउंटेन के ऊपर जाते हाइट पे जाते जाएंगे तो माउंटेन का जो एरिया है वो कोल्ड से कोल्डर होता जाएगा, और जो उसकी टॉप है वो कवर रहती है snow all year round. Now turn the page. The third, proximity, nearness to the sea. आप सी के जितने पास होंगे ना, the sea keeps place near to the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries. अच्छा, अब आप आपका जो एरिया सी के जितने पास होगा, जिसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, साहिली इलाका, वो उसका जो वेदर है वो समर में बहुत हॉट नहीं होगा और विंटर्स में बहुत कोल्ड नहीं होगा, वो माइल्ड रहेगा. यानी समर और विंटर्स में वो माइल्ड ही रहता है, ज़्यादा हॉट और कोल्ड नहीं होता. ओशन करंट्स, राइट दिस लाइन ऑन द बुक. Currents are movement of water in the ocean. Ocean currents mean कि जो ओशन में करंट्स यानी पानी की जिस तरह मूवमेंट होती है, यानी पानी जिस तरह मूव कर रहा है ओशन में, स्पीड से कर रहा है, लो स्पीड से कर रहा है, डायरेक्शन उसकी क्या है, उन सब चीज़ों से, इन सब को ओशन करंट्स कहते हैं. इनसे जो है वो अफेक्ट होता है वेदर. In some part of the world, ocean currents also affect temperature. The cold Humboldt current from the Arctic sweeps up the west coast of South America, keeping country like Peru, which is well within the tropics, quite cool. पीरू जो है वो एक ट्रॉपिकल एरिया है, लेकिन उसका जो वेदर है वो कूल रहता है. पीरू का कैपिटल है लिम्मा. Lima, only 12 centigrade south of the equator, has a temperature range 60 to 22 centigrade. Lima is the capital of Peru. It's near to equator, right? लेकिन उसका जो अगर नियर टू इक्वेटर है तो माइल्ड ही है, लेकिन वार्म भी होना है. लेकिन इसका जो थ्रू आउट द वो टेम्परेचर रहता है 16 to 22 सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ द ओशन करंट्स. पानी की जो मूवमेंट है ओशन में, उसकी वजह से जब वो लहरें बहुत तेज़ आती हैं और हवा उससे बहुत ज़्यादा फास्ट उसकी तरफ होती है, तो उससे वो वेदर कूल रहता है. ऑन द अदर हैंड, द गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ Atlantic drift, which comes from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most Europe west coast much warmer than it should be. जब गल्फ स्ट्रीम्स, और जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, वो जब गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ क्रॉस करके अटलांटिक ओशन से यूरोप के वेस्ट कोस्ट की तरफ मूव करती है, तो वो उसको ज़्यादा वार्मर बना देती है.
Our fourth cause, rainfall. As all we know, rainfall is very important. जिस एरियाज में रेनफॉल ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली वहाँ का वेदर ज़्यादा कूल और बेटर होगा एज कम्पेयर. ऑब्वियसली पोल्यूशन नहीं होगी इतनी ज़्यादा, जो आपका एरिया है वो क्लीन होगा. सो रेनफॉल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. The world's average rainfall is between 1000 to 2000 meters a year, though there are a great different places in the world. Atacama Desert, चिली के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ डेजर्ट है एटकामा डेजर्ट. 100 of years से वहाँ पे कोई रेनफॉल, मेजरेबल रेनफॉल नहीं हुई, इसलिए उसको दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है. बट ऑन द अदर हैंड चेरापौंजी इन असम इन इंडिया 1861 में वहाँ पे 1990 मिलीमीटर रेन हुई थी एक साल में, और दिस इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टिल नाउ. So this is the most like driest place on the earth. Atacama and Cherrapunji is more very rainful place. So जहाँ और उससे फिर वेदर कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली एटाकामा में डेजर्ट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया है, वार्म है, और नो रेनफॉल, तो ऑब्वियसली वेजिटेशन नहीं होगी. जबकि चेरापूंजी फुल ऑफ ग्रीनरी है, और ये असम में इंडिया में है. सो रेनफॉल इज़ आवर फोर्थ कॉज. नाउ कम टू द पेज नंबर 11. Air pressure. Air pressure is one of the cause of the different climate. Air may not seem to have any weight, but it does. It is just that we don't normally feel. Above each of us is column of air several kilometer high. Actually, this column of air weighs about 230 kilograms. एयर का वेट होता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें सेवरल किलोमीटर हाई जो है एक एक कॉलम है. उस कॉलम में एयर के वेट्स की वेट होता है, और वो एक कॉलम 230 किलोग्राम्स एयर वेट रखता है. द एयर प्रेशर इज़ नॉट स्टेडी, ऑब्वियसली. समटाइम इट प्रेसेस मोर हैविली ऑन द अर्थ देन एट अदर टाइम्स. समटाइम एयर का प्रेशर अर्थ पे बहुत ज़्यादा होता है, और समटाइम एयर का प्रेशर कम होता है, और उससे फिर एंटी साइक्लोन और साइक्लोन डेवलप होते हैं. द एवरेज अबाउट 1 किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर. जो एवरेज है कि 1 किलोग्राम जो है वो एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर पे होता है. व्हेन प्रेशर इज़ हाई, the weather is usually fine and dry. When the pressure is low, it is usually stormy and wet. जब एयर प्रेशर ज़मीन पे हाई होता है, यानी वो एयर जो है ज़मीन के ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर उसका होता है, तो जो आपका वेदर है वो फाइन और ड्राई ही रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एंटी साइक्लोन. व्हेन द प्रेशर इज़ लो, जब वो प्रेशर उसका लो होता है, इट इज़ यूजुअली स्ट्रॉमी एंड वेट, और इसको कहते हैं साइक्लोन. So these are the two conditions of cyclone and anticyclone. The last, direction of wind. The direction from which the wind usually blow also has effect on climate. If a place mainly has north wind, is usually cold because they blow in from the Arctic or colder region. अगर आप नॉर्थ की तरफ से आपकी हवा आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आर्टिक की तरफ से, कोल्ड रीजन की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से वो हवा जो है कूल होगी. द साउथर्न हेमिस्फेयर, इट इज़ साउथर्नली विंड्स विच आर कूल. ये जो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जब नॉर्थ की तरफ से यानी आर्टिक रीजन की तरफ से जो हवा चलेगी वो कूल होगी. इन साउथर्न हेमिस्फेयर में जब वो साउथ पोल यानी एंटार्क्टिक की तरफ से हवा जो चलेगी वो कूल होगी. इफ़ द विंड्स ब्लो अक्रॉस लार्ज एरिया ऑफ सी, दे पिक अप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस रेनी क्लाइमेट. और ऑब्वियसली अगर वो हवा ओशन के ऊपर से गुजर के आएगी, तो वो उसके अपने साथ
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स लेके आएगी, जिसकी वजह से रेन प्रोड्यूस होगी. इफ द प्लेस फेसेस नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट इज़ यूजुअली कूल. एज आई टोल्ड यू कि अगर हवा जो है आपकी नॉर्थ मीन्स पाकिस्तान इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो अगर हमारी तरफ नॉर्थ की तरफ से यानी हवा आएगी पाकिस्तान में एंटर होगी, तो इट मीन्स कि वो कूल हवा है, बिकॉज वो आर्टिक रीजन की तरफ से आ रही है. बट इफ़ इट फेसेस साउथ, अगर हवा साउथ की तरफ से आएगी तो वो वार्म होगी, बिकॉज कि वो जो है साउथन के सारे कंट्री से होकर बिल्कुल ड्राई रेन हो जाएगी. प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर हैव वार्म क्लाइमेट. ऑब्वियसली जो वैलीज़ हैं वो ऑब्वियसली शेल्टर्ड होती हैं, क्योंकि उसके सराउंडिंग में माउंटेन्स होती हैं, हिल्स होती हैं यहाँ, तो वो उसका एरिया हॉट नहीं होता, वार्मर होता है, मतलब माइल्ड एरिया, वार्मर एरियाज होते हैं. आई होप दिस चैप्टर इज जस्ट दीज टू थिंग्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट एंड different